So let's start with matrices. काफ़ी इजी है एंड इसमें सबसे अच्छी बात है कि कैलकुलेशंस है बट इतने ज़्यादा नहीं है, काफ़ी इजी कैलकुलेशंस है. ठीक है. So let's start with matrices. Actually, what do you mean by matrices? Matrices, in a simple word, it is an arrangement of numbers in rows and columns. It is an arrangement of numbers in rows and columns. Okay. So here I'm starting with matrices. So you can see in the screen. So we have the arrangement of the numbers in rows and columns. So here 532 represent the first row. This sleeping line is called as rows and the vertical line is called as column. So this is a matrix. So suppose the matrix is always represented by a capital letter, any capital letter, A, B, C, D, whatever, and it is written in a square bracket. But यहाँ पे थोड़ा simplicity के लिए उन्होंने round कर दिया है, but actually it is what, a square bracket from both the side. ठीक है. So we have the numbers are arranged in rows and columns. In the first row we have the element, these are the element, the number inside the bracket are called as elements. So numbers are 5, 3, 2, 10, 8, 5 and 15, 10, 2. So these are the numbers in rows which represent the first row, second row and third row. I will write as R1, R2 and R3. So we have 3 rows in this matrix. And again, if I'll go with the column, so it is column 1, column 2 and column 3. So we have 3 columns. So we have 3 rows and we have 3 columns for this matrix A. Then a new word comes which is called as order of the matrix. What is order of the matrix? Order of the matrix is written as, this is matrix. What is matrix? मैंने पहले बताया, it is an arrangement of a number in rows and columns. मतलब तुम्हारे पास कुछ numbers दिए हुए, say the numbers are 5, 3, 2, 10, 8, 5, 15, 10, 2. You arrange them in rows and columns. एक proper pattern हो गया. ठीक है. तो वहां पे फिर एक आता order of a matrix. What is order of a matrix? Order of a matrix is always written in R into C. R into C, where R represent number of rows and C represent number of columns. So अगर मुझे मैट्रिक्स A का ऑर्डर लिखना है तो इसमें कितने रोज है, 1, 2 and 3. So it will be 3 into column कितने हैं, again it is 3. So the order of say मैट्रिक्स A का अगर लिखना ऑर्डर तो it will be 3 into 3. मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट 3/3 या 3 into 3 ऐसे ही रीड करते हैं. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/3. इट मींस मैट्रिक्स ए कंटेन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सपोज अगर मैं दूसरा एक मैट्रिक्स ले रहा हूं बी विच एलिमेंट्स आर 1, 2, 7, 6. व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या रहेगा बताओ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी 2/2. 2 into 2. 2 into 2 or 2/2. Matrix C, which is 3, 1, 7, 2, 1, 6. Order of matrix C क्या रहेगा बताओ? What is order of 3 matrix? into 2. I think this matrix contain only 2 rows and 3 columns. So this is 2/3, correct? Containing 2 rows, 2 horizontal line and 3 vertical line. So it will be order having 2/3, correct? Now one more, say D. Kanika? Yes, sir. Yes, मैट्रिक्स डी का बोलो ऑर्डर. 3, 6, 9, 2, 8, 5. ऑर्डर 3 into 2. वेरी गुड. 3 into 2, वेरी गुड. अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, अभी समझो कि मैट्रिक्स नहीं दिया है बल्कि ऑर्डर दिया है. क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट.
नंबर ऑफ एलिमेंट, कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट रहेंगे. सपोज इट इज गिवन एज 2 into 3. ठीक है, मैट्रिक्स सी नहीं पता है, बस ऑर्डर दिया हुआ 2/3. आई वॉन्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सी का मैट्रिक्स दिया उसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है. अगर मैट्रिक्स सी नहीं दिया है, सिर्फ ऑर्डर दिया है, ऑर्डर से भी मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ. कैसे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6. तो मतलब मैट्रिक्स सी विल कंटेन 6 एलिमेंट. इफ यू डोंट नो द मैट्रिक्स, इवन by the order I can come to know how many elements are there. So just you have to multiply the order. जो रहेगा R और C दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, will give you the number of element. अगर यहाँ पे बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 2 जा 4. मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, that is 3 into 3 9. So these are giving you the number of elements. समझो अगर मुझे D में पूछना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, तो it will be what, 3 into 2, that is 6. तो यहाँ पे मैंने अभी तक तुम्हें दो चीज सिखाया, हाउ टू गेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड हाउ टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग order of matrix is done. Now we are starting with types of matrix. So you have to understand this types of matrix. There are so many types, I think 10 to 11 types दिया हुआ है, और हर एक टाइप इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस तुम लोग को हर एक का एग्जाम्पल समझना है. जैसे आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप विच इज रो मैट्रिक्स. रुको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू. यस, okay, so this is my first type, row matrix. This is my first row matrix. What is row matrix? Row matrix is the matrix which contain only one row. सिर्फ एक रो रहेगा. जैसे मैं एक एग्जांपल A 1 7 9, तो it is only a one horizontal line. B example 3 4 6 9, again it is a one row only. So matrix A B are called as row matrix which contain only one row, which contain only one row is called as row matrix. Can anyone tell me what will be the order of this matrix, these two matrix? चलो first matrix का order क्या रहेगा? Mikhail, Somesh, Somesh, are you there? So Yes. it would be 1 into 3. Huh, that's good. 1 into 3. But where is Somesh? Okay, I'll check him in the next lecture. Kanika? Yes, sir. कनिका, मुझे बताओ मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या रहेगा? 1 into 4. Yes, so there is one common thing. Whenever it is a row matrix, the first element will always be 1. ठीक है, very good. Second, we are starting with column matrix. Column matrix उल्टा रहेगा, it contain only one column. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2 5 6 2 7 1 2 3 4. So these are column matrix. और column matrix में अगर मैं ऑर्डर दूं 2 5 6, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? It will be 3 rows, 3 horizontal line and 1 vertical line. So it will be 3 by 1. 2 rows and 1 column. It's 2 by 1. This is 4 by 1. So column matrix में हमेशा second value 1 रहेगी, first value कुछ भी रहे. मतलब it will be in general मैं बोल सकता हूँ it will be m into 1 रहेगा. और रो मैट्रिक्स में 1 into n रहेगा, मतलब सेकेंड वाला वैल्यू n कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट हमेशा 1 रहेगा. ठीक है. देन वी हैव अ थर्ड टाइप विच इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. अब देखो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स मतलब क्या? इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओ. लेटर ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. इनका फिक्स ऑर्डर नहीं, एज पर योर नीड
तुम कितने भी जीरोस लिख सकते हो. It is having 2 by 3, or you can take 2 by 2, but all elements are 0 and it is represented by letter O. So this is called as zero matrix. ठीक है. So यहाँ पे हमने 3 टाइप सीखा. Now we'll move to the next type, square matrix and scalar matrix. There are 2 types, square matrix and the 1 2 3. This is 4 square matrix and 5th scalar matrix. What is square matrix and then rectangular matrix? There are 2 types. Fourth में 2 type है, square and rectangular. Square रेक्टेंगुलर. स्क्वायर में क्या रहेगा, रो और कॉलम सेम रहेंगे, मतलब ऑर्डर ऐसा रहेगा 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4. एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 4 5 6 2. एग्जाम्पल 3 1 2 7 8 5 2 1 6. सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी देयर ऑर्डर्स. अगर चेक करें फर्स्ट का ऑर्डर, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ प्रॉपर मैथ. Sir, Somesh had called me. He said that he's facing some network issues. सोमेश. ओके 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 Yes, sir. ओके ओके ओके. ठीक है ठीक है ठीक है. So 4 5 6 2, the order of this will be 2 by 2, the order of matrix A, and the matrix B is order having 3 by 3. So you can check दोनों same रहना चाहिए, R और C, row and column same रहना चाहिए, then it is called a square matrix and it will look like square matrix. Rectangular में example क्या रहेगा, मतलब row and columns are not equal. Suppose I am taking one example having 2 1 6 3 1 2. तो इसका order है 2 by 3 having 2 rows but 3 columns. Or else I can take in other way, that is 3 1 2 6 7 9 having 3 rows but 2 columns. So these are square and rectangular matrix. Okay. Then we have the 5th type is called a scalar matrix. Before starting with scalar matrix, first you have to understand this diagonal matrix. What is diagonal? Then I will tell you the scalar. Diagonal matrix. What is diagonal matrix? What is diagonal matrix? Suppose I am writing matrix A. So the values which represent on the diagonal, मतलब basically ये जो values है जैसे A, B, C जो मैंने diagonal में लिखा है, ये तीनों values present रहेगी, बाकी rest of the values are zero. Means the value only present on the diagonal, सिर्फ diagonal में value present रहेगी, बाकी rest of the value should be zero. Is called as diagonal matrix. जैसे मैं एक example बोल रहा हूँ 3 by 3 का, 3 0 0 0 4 0 0 0 minus 5. तो rest of the values you can see are zeros, मतलब ये सब zero होने चाहिए, compulsion है. And diagonals must contain values. Diagonals में भी zero रहेंगे, एक दो चलेगा, कम से कम एक values तो रहनी चाहिए, बाकी rest of ये सब zero. यहाँ पे एक भी value present नहीं होनी चाहिए दोनों साइड, only the diagonals. And one more thing, only एक ही diagonal होता, from the first value to the last value. उल्टा diagonal नहीं होता, मतलब ये ऐसा diagonal नहीं होता. This is not, मतलब diagonal उल्टा नहीं होता, ये diagonal नहीं है. Diagonal is always start from the first value goes till the last value. बस एक ही diagonal होता है every matrix में, ठीक है. और सिर्फ diagonal elements present रहेंगे, then it is called as diagonal matrix. ठीक है. जैसे ये 3 by 3 का होगा, 2 by 2 का मैं बोलूं एग्जाम्पल, तो 3 0 0 minus 5. तो दिस इज व्हाट वी हैव दी डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स इज द स्पेशल टाइप ऑफ अ डायगोनल, मतलब डायगोनल ही होता है लेकिन एक स्पेशल टाइप है. स्पेशल टाइप क्यों बोल रहा हूं मैं, कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा ही दिखेगा, बस डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहेंगे सब. तो अगर एक 3 है तो बाकी सब भी 3 रहेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर 0. तो इससे हम लोग डायगोनल नहीं बल्कि इसको बोलेंगे स्पेशल टाइप स्केलर मैट्रिक्स, इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. क्लियर है. सपोज एक मैं बी एग्जाम्पल दे रहा, इट इज नॉट एवरी टाइम पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, -2
0 0 -2. Again it is 2 by 2 का स्केलर मैट्रिक्स है. So only the diagonal elements should be present and all are same, then it is called as scalar matrix. All are clear? यहां तक पांचों टाइप्स क्लियर हो गए सबको? एक बार फिर भी क्विक रिकैप कर लेते हैं. रो मैट्रिक्स सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम, जीरो मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स रो एंड कॉलम सेम रहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, एंड स्केलर मैट्रिक्स का पहले मतलब डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर जीरो, एंड उसका स्पेशल टाइप है स्केलर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. ठीक है, अब हम लोग आगे और टाइप्स पढ़ते हैं. स्केलर मैट्रिक्स हो गया. अब इसमें आता है यूनिट मैट्रिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये सम्स में बहुत बार आने वाला है. Okay, what is unit matrix? Unit matrix is always represented by I. अब इसके आगे जो भी टाइप्स आएंगे सब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का टाइप नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में. यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड इट इज अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल, जिसमें डायगोनल हमेशा 1 होनी चाहिए और कुछ नहीं. दिस इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 मीन्स 2 by 2. अगर तुम्हें यूनिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय आई लेटर और कोई लेटर नहीं है, आई 3 by 3 मतलब थर्ड ऑर्डर चाहिए, सो यू हैव टू राइट like this 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So this is again unit matrix but order 3 by 3. So as per the question what you need, तुम कुछ भी ले सकते हो. मतलब अगर 2 by 2 का चाहिए डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन. अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो आई को ये लेंगे 2 by 2 का, और अगर थर्ड ऑर्डर है तो विल टेक 3 by 3. तो दिस इज यूनिट मैट्रिक्स विच इज आर 6 टाइप्स. ठीक है, then we have the 7th upper triangular matrix. Upper triangular matrix and lower triangular matrix. इसका ज्यादा यूज नहीं है, एक्चुअली बहुत ही कम सम्स में आएगा ये. 6th then we have upper triangular में 7th में A ले लेंगे अपर and B ले लेंगे lower. What is upper triangular matrix and what is lower triangular matrix? Suppose this is diagonal. ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के लोअर 0 रहेगा, ऊपर कुछ भी वैल्यू रहेगी, इवन डायगोनल पे भी कुछ भी वैल्यू रहेगी, बट अपर में डायगोनल के लोअर 0 और लोअर में डायगोनल के अपर 0. एग्जाम्पल, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एग्जांपल है, सपोज आई एम राइटिंग 3 6 9, डायगोनल पे लिख दे रहा हूं, कोई भी रैंडम वैल्यू ले रहा हूं. अपर मतलब डायगोनल के लोअर 0 हो जाएंगे, अपर कोई भी वैल्यू रहेगी -2 5, इवन अपर में भी 0 हो सकते हैं, बट लोअर तो कंफर्म है कि 0 होना ही चाहिए. अगर मैं 2 by 2 एग्जांपल लूं तो ये डायगोनल में 7 और 6 एक 0, क्योंकि डायगोनल के नीचे एक ही वैल्यू है, बाकी ऊपर कुछ भी रहेगा. ठीक है, ये हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर में उल्टा, लोअर में Sir, यस sir, in the example of upper triangle matrix, the third example I did not understand. थर्ड कौन सा? ये हाँ एक्चुअली sir, वो अपर, वाला. हाँ एक्चुअली इसमें अब ये अपर ट्रायंगुलर है ही नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे भी. इवन ये भी नहीं है एक्चुअली, ये भी नहीं है एक्चुअली, दोनों क्वेश्चन गलत है. यहाँ पे ये रो नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे तो ये क्वेश्चन ही गलत है. अभी ये और ये करेक्ट है. ठीक है, Okay sir. अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा? उल्टा, अपर में लोअर 0, लोअर ट्रायंगुलर में अपर 0, मतलब डायगोनल के अपर 0 रहेगा. इट मींस अगर मैं एग्जांपल बोलूं 7 6 और 8 है, तो डायगोनल के अपर ऑल द 3 एलिमेंट्स आर 0, नीचे कोई भी वैल्यू रहेगी -2 -5 एंड 7. अगर 2 by 2 का बोलूंगा तो समझो कि 7 और 8 है, तो लोअर में अपर 0 रहेगा और नीचे कोई भी वैल्यू रहेगी. क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज 7th टाइप.
then सब मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स. वैसे सब मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सब मैट्रिक्स में बेसिकली व्हाट द सब मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम फॉर अ मैट्रिक्स. मतलब ये मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है. ये आएगा नहीं, बट फिर भी एक नॉलेज के लिए आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग. सब मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स. व्हाट इज सब मैट्रिक्स? सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, जैसे 3 2 1 6 5 9 8 4 2. सब मैट्रिक्स आएगा एडजॉइंट निकालने के लिए जब मैं एडजॉइंट सिखाऊंगा सब. बट अभी मैं बता दे रहा हूँ सब मैट्रिक्स एक्चुअली सब मैट्रिक्स मतलब होता है मैट्रिक्स का पार्ट. तो अगर 3/3 है तो 3/3 में अगर सब मैट्रिक्स निकालना तो इट विल बी 2/2. मतलब हमेशा एक लोअर ऑर्डर हो जाता है. तो अगर ये 3/3 है तो इसका सब मैट्रिक्स 2/2. अभी 2/2 क्या रहेगा, ध्यान सुनो. तुम्हारे पास अगर 9 एलिमेंट्स है तो इसके 9 एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मींस व्हाट, कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो वी हैव 9 एलिमेंट्स. तो अगर 9 एलिमेंट्स अगर मैं इसका सब मैट्रिक्स निकालूंगा तो इसके 9 सब मैट्रिक्स मिलेंगे. मैं इसमें से एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज मुझे ये जो एलिमेंट है इसका सब मैट्रिक्स निकालना, तो ये रो, कोई भी रो और कोई भी कॉलम को डिलीट कर दो. सपोज आई एम डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर रहा हूं, सपोज ये मेरा फर्स्ट रो, इसको मैंने डिलीट किया और फर्स्ट कॉलम मैंने इसको डिलीट किया, तो एलिमेंट्स क्या क्या बचा बताओ. द एलिमेंट्स आर इट्स 5 9 4 2. तो ये मेरा सब मैट्रिक्स हुआ. तो ऐसा मैं कितने भी सब मैट्रिक्स बना दे रहा हूं. अगर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सब मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग, क्वेश्चन में मेंशन करेंगे डिलीटिंग से थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. मुझे बोला फाइंड द सब मैट्रिक्स डिलीटिंग सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम बोला. तो सेकेंड रो अगर मैं समझो कि ब्लैक पेन से कर रहा हूं, थर्ड रो मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड रो को डिलीट करना है एंड सेकेंड कॉलम फर्स्ट सेकेंड, मतलब ये सेकेंड कॉलम को डिलीट करना. मतलब ब्लैक से जो डिलीट हुआ उसको उड़ा दो, जो मैंने देखो एरो हेड किया है. तो कौन कौन से एलिमेंट बचे सब मैट्रिक्स में? इट विल बी 3 1 6 9. करेक्ट. तो दिस इज माय व्हाट सब मैट्रिक्स. आर यू क्लियर विद सब मैट्रिक्स? एंड देन वी हैव यस यस जिग्नेश. ये प्रॉपर स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने चाहिए. यस एवरी टाइम, मतलब नॉट फॉर दिस, मतलब जितना भी मैंने टाइप सिखाया सबके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपल्शन है. रेक्टेंगुलर कहीं भी नहीं चाहिए. ठीक है. ओके सर. अब लास्ट मैट्रिक्स इज इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट एक ही है कि जहां पे तुम्हें अननोन फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम लोग इक्वल मैट्रिक्स यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे 2/2 है और यहाँ पे भी 2/2 है. अगर बीच में इक्वल टू बोल दिया मतलब इसके ऑल एलिमेंट्स और इसके ऑल एलिमेंट्स इक्वल होंगे. जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 3 4 x 5 और यहाँ पे बोला कि 3 4 7 5. तो these two are equal matrix only when all elements are correspondingly equal. तो मतलब पहला 3 है तो यहाँ भी फर्स्ट 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए. इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? x which is over here. तो यहाँ पे यहाँ का वैल्यू क्या दिया 7. तो x is equal to 7. तो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट कहाँ पे आता है? जहां पे तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट, जिसमें तुम्हें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, वहां पे इक्वल मैट्रिक्स आता है. तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब कंसेप्ट यही है कि एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. मतलब हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा. कहीं भी अगर 4 की जगह अगर यहाँ पे -4 दे दिया, सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज, तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है. इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दोनों मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट सेम होना चाहिए. करेक्ट है. सो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो आज मैंने मैट्रिसेस के सब टाइप एक्सप्लेन कर दिए हैं. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसके और एडिशन में अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स सीखेंगे. अलजेब्रा मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब सीखेंगे. एंड देन लास्ट में इनवर्स सीखेंगे एंड फिर इसके क्वेश्चंस. इसमें एक ही एक्सरसाइज है बस. सो नेक्स्ट टाइम अपना ये जो मैट्रिक्स चैप्टर ये हो जाएगा. ठीक है. एंड तुम लोग को नेक्स्ट टाइम तक, मतलब बेसिकली ट्यूसडे से पहले आई थिंक संडे तक, यस संडे तक तुम लोग को जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कराया है दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, जो भी है रेशियो, प्रपोर्शन और इंडाइसेस और लॉगरिथम, जो भी 4 पार्ट है
उनके जो एडिशनल क्वेश्चन सो 1 से लेके एटलीस्ट संडे तक, ज्यादा मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, 1 से लेके लेकिन 50 सम्स तक, हर एक सम्स का प्रैक्टिस सॉल्यूशन के साथ मुझे ग्रुप में शेयर कर दो पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब 1 2 3 4, चाहे वो रफ वर्क ही रहे तो भी सेंड करो मुझे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है जिसको, वो ग्रुप में शेयर करेगा। जैसे भी आज 3-4 क्वेश्चंस हुए, लेकिन टाइम लिमिट के हिसाब से वो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, काफी बड़े बड़े थे, तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है। तो जो भी डाउट है वो ग्रुप में मुझसे पूछो, आई विल एक्सप्लेन यू। बट संडे तक 50 क्वेश्चन हर एक के आ जाने चाहिए मुझे, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Thank you, sir. या बाय बाय।